اور ناظرین اس وقت آپ کو بتائیں کہ شاہ محمود قریشی میڈیا کے نمائندوں سے بات کر رہے ہیں اور ان کی ٹیم پہنچی۔ سندھ ہاؤس اسلام آباد کا ماحول لاہور میں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ لوگوں کو بہت کچھ کہا گیا، لیکن وہ اپنے قدموں پر جمے رہے، مایوس نہیں ہوئے، اور انہوں نے اپنے مینڈیٹ کا احترام کیا۔ میں آج عمران خان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ آپ اپنے موقف پر قائم رہیں اور پرواہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ غائب سے مدد کرے گا۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے قانونی جنگ بھی لڑی، ہمارے وکلاء نے بہت عمدہ طریقے سے عدالت میں ہماری نمائندگی کی، ہمارے ممبران صوبائی اسمبلی نے اپنا کردار کا مظاہرہ کیا اور جمے رہے۔ 186 ووٹ اعتماد کے لیے درکار تھے اور الحمدللہ 186 ووٹ آج حاصل کر کے واضح طور پر اسمبلی سے اپوزیشن یہ کہتی رہی کہ آپ 186 ممبر اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ اعتماد کا ووٹ کیوں نہیں لیتے؟ آپ اکثریت کھو چکے ہیں، آپ اعتماد کھو چکے ہیں۔ اور ہم کہتے رہے کہ نہیں، وقت آنے پر ہم اپنی اکثریت ثابت کرنے کے اہل ہیں اور کر کے دکھائیں گے۔ آج عدالت میں بھی ہمارے وکیل علی ظفر صاحب نے دلائل دیے اور کل بھی پیشی ہے۔ آج کے اس میں سمجھتا ہوں کہ واضح منتخب نمائندوں کے پیغام کے بعد عدالت بھی ہماری رہنمائی فرمائے گی۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری رہنمائی فرمائے گی اور اس چیپٹر کو ہم کلوز کریں گے۔ اور جیسے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، اس ناکام حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہمیں مستقبل کی صف بندی کرنی ہے، عوام کی طرف جانا ہے اور عوام کو موقع دینا ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ مستقبل کی قیادت ان کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے، وہ کس پہ بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت ہماری نظروں میں ناکام ہو چکی ہے۔ جو معاشی دعوے کرتے تھے کہ وہ استحکام لے کر آئیں گے، وہ ملک کو معاشی استحکام دینے میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ نہ صرف بری طرح ناکام ہوئے ہیں، معیشت اب جو ہے وہ بالکل ٹینک کر گئی ہے، صنعتیں بند ہو رہی ہیں، تاجر پریشان ہے، ملک پہ سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، مہنگائی نے 50 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے، افراط زر جو ہے وہ اب 35% کو چھونے کے قریب ہے، بے روزگاری جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور لوگوں میں غیر یقینی کیفیت پیدا ہو چکی ہے، مایوسی دکھائی دیتی ہے، افراتفری دکھائی دیتی ہے، بے چینی دکھائی دیتی ہے۔ اس بے چینی سے نکلنے کے لیے واحد راستہ جو تحریک انصاف کہہ رہی ہے وہ ہے نئے انتخابات۔ پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے وہ عوام پر اعتماد کیوں نہیں کرنا چاہتی، وہ عوام کا سامنا کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ فیصلہ ہم ایک جمہوری انداز میں آئین کے عین مطابق عوام پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے، ملک کو مزید اس غیر یقینی صورتحال سے نکالا جائے اور نئے انتخابات کا اعلان کیا جائے۔ مرکز میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے ممبران قومی اسمبلی نے استعفیٰ دیا اور اس امپورٹڈ حکومت کو قبول نہیں کیا، اسے تسلیم نہیں کیا، عوام سے رجوع کیا
और इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ ज़िलों में, मुख्तलिफ सूबों में जाकर लोगों से बात की और लाखों के तादाद में लोग उनकी बात सुनने आए। तो ज़िमनी इंतखाबात का मरहला आया तो लोगों ने इमरान खान के नुमाइंदगान को मुंतखब किया। उन वोटों को जो पीटीआई के टिकट पर मुंतखब होकर आए थे उन्हें मुस्तरद किया 17 जुलाई को, और आज एक एक वोट कीमती था। और हम शुक्रगुजार हैं उन तमाम हलकों के लोगों को जिन्होंने हमारे मेंबरान सूबाई असम्बली को 17 जुलाई को मुंतखब किया था। अगर वो न किया होता तो आज हमारे पास 186 की अक्सरियत ना होती। जब एक मंसूबे के तहत सिलेक्टेड सीट्स पर हमारे पिक एंड चूज़ करके कुछ मेंबरान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर किए गए और इमाम खान साहब ने कहा कि मैं इनका मुकाबला करूंगा, तो 8 में से 7 हलकों में लोगों ने उन पर एतमाद करते हुए उन्हें कामयाब किया। लोग जानते थे कि वो असेंबली में नहीं जाएंगे, वो जानते थे कि शायद इस वोट से इमीडिएटली उनकी तवक्कुआत पूरी ना हो, लेकिन वो एक कल के बारे में सोच रहे थे, मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे थे। उनकी निगाहें एक खुशहाल, मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान की तरफ थी और उन्होंने इमरान खान को 8 में से 7 हलकों में कामयाब किया। और कराची में भी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता तो कामयाबी मिलती। पीडीएम का एतमाद आपके सामने है। इस्लामाबाद के इंतखाबात को, बल्दियाती इंतखाबात को चंद रोज पहले मुलतवी कर दिया गया। आप देख रहे हैं कि कराची की सूरत हाल आपके सामने है। आज उनके अपने हलीफ एमक्यूएम की जो और दीगर जो वहाँ जमातें हैं, उन्होंने मिलकर हुकूमत की जो मनसूबाबंदी है उसके खिलाफ एहतजाज किया है। तो हालात बदल चुके हैं, हालात बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। आज मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने लोगों को बाखबर रखा और हमारे नुक्ता नज़र को भी गाहे बगाहे वो लोगों तक पहुँचाते रहे। आपका शुक्रगुजार हैं, मेंबरान के शुक्रगुजार हैं, वकला के शुक्रगुजार हैं, ख़वातीन के शुक्रगुजार हैं। बहुत बातें की गई कि इतने लोग टूट गए, बहुत सी बातें की गई कि फ़ला बहुत से कुछ अज़ला के बारे में ज़िक्र किया गया कि वहाँ के लोग जो हैं वो अपना रास्ता बदल चुके हैं। लेकिन आज सब कुछ साबित हो गया कि नहीं, लोग अपनी जगह पर कायम हैं। कल भी इमरान खान के साथ थे और आज भी इमरान खान के साथ हैं। और इंशाअल्लाह हम समझते हैं कि एक साफ शफाफ इंतखाबात के ज़रिए आवाम को मौका दिया गया तो इमरान खान को एक भारी अक्सरियत से लोग कामयाब करेंगे। और वो अक्सरियत इसलिए भी दरकार है कि पाकिस्तान को जिस किस्म की इस्लाहात दरकार हैं, पाकिस्तान को जिस तरह हमारे इदारों को हमें इकनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग करनी है, रिफॉर्म्स करने हैं, वो एक भारी मैंडेट के बगैर मुमकिन नहीं है। इस हुकूमत के पास वो मैंडेट नहीं है, वो अवामी ताईद नहीं है कि वो आगे बढ़ सके। इसलिए आज का ये मैसेज जो है मुंतखब नुमाइंदगान का, अवामी नुमाइंदों का एक बहुत बड़ा मैसेज है। और मैं समझता हूँ सुनने वालों को इस मैसेज पर गौर करना चाहिए। शुक्रिया। शाह साहब, ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब का सबसे बड़ा जो स्टांस था कि पंजाब असम्बली को तहलील किया जाए। अब परवेज़ दिलाई साहब ने एतमाद का वोट ले लिया है। कहा यह जा रहा है कि परवेज़ दिलाई साहब ने नाराज़ अरकान को हल्फ दिया है कि मैं पंजाब असम्बली नहीं तोड़ूंगा। अब किसका नैरेटिव चलेगा, इमरान खान साहब का या चौधरी परवेज़ दिलाई साहब का? अगर आप चौधरी परवेज़ दिलाई की जो अभी उन्होंने ऐवान के फ्लोर पे तकरीर की है, उन्होंने इमरान खान के विजन को सामने रखते हुए कहा है कि ये कामयाबी इमरान खान के विजन को मिली है। उन्होंने इमरान खान पर पूरे एतमाद का इजहार किया है और मुझे यकीन है कि वो इमरान खान
के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। साहब ये कहीं बताइएगा कि आज उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले वफाकी वज़ीर दाखिला यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि 186 है या 196 है, वो इस गिनती जाली गिनती को नहीं मानते और तमाम कानूनी और आईनी रास्ते अपनाएंगे और कल अदालत में सबूत पेश करेंगे ज़रूर कि 7 लोग जो हैं आपके बाहर हैं मुल्क से। नहीं, देखिए पहली बात तो ये है, मीडिया मौजूद था, कैमरा मौजूद थे, एक एक मेंबर जो बाहर गया डिवीजन की गई, टिल पर उन्होंने अपना डिवीजन नंबर पुकारा और टिक किया गया, गिनती की गई, कोई अभाव नहीं है, फुटेज मौजूद है, कौन हाजिर है कौन गैर हाजिर है उसकी फुटेज मौजूद है। मैं समझता हूं कि अपोजिशन को खंदा पेशानी का मुजाहरा करना चाहिए था। इलेक्शन में हम हारते भी हैं, जीतते हैं, हम हारे हैं, हमने हार को कबूल किया है, हम जीते हैं, हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया है जब हमें कामयाबी मिली है, जब हार हुई है तो हमने इसको तस्लीम किया है, इसे जमहूरियत कहते हैं। आज जिस तरह उन्होंने यहाँ हुल्लड़बाजी की, बदनज़मी का मुजाहरा किया, डाइस पर हमला किया, कुर्सियाँ चलाई, ये बौखलाहट की निशानी भी थी और ये जिसे कहते हैं ना गैर पार्लिमानी एक हरकत थी। मैं समझता हूँ कि वो बेशक जिस तरह तसल्ली करना चाहें, हमने कोशिश की है कि एक एक मेंबर जो मौजूद था उसकी वह हाजिरी भी और उसकी तस्वीर भी रिकॉर्ड की जाए। आपने देखा कि हमारा एक मेंबर जो रवाना थे, रास्ते में थे और धुन थी जी, हम चाहते तो उनका वीडियो बयान भी आ गया था कि मैं इमरान खान पर भरपूर एतमाद का, परवेज़ इलाही पर एतमाद का इजहार कर रहा हूँ, लेकिन हमने उस बयान को काफ़ी नहीं समझा, हमने ताख़ीर थोड़ी हो गई, लेकिन हमने उनका इंतज़ार किया और जब नंबर्स पूरे हुए, एक मरतबा नहीं 2-3 मरतबा हमने उसकी तसल्ली की, चीफ विप से पूछा, जब उन्होंने आकर उसमें स्पीकर साहब बैठे थे, असद उमर बैठे हुए थे, मैं था, हम सब बैठे हुए थे, हमारे दीगर जो पार्टी के फवाद चौधरी बैठे हुए थे, दीगर हज़रात बैठे हुए थे, हमाद थे, जब उन्होंने आकर कहा कि नहीं, मैंने खुद गिनती की है, मैंने खुद तसल्ली की है, जो मैं कह रहा हूँ वो नंबर्स मौजूद है, तब ऐवान की कार्रवाई शुरू की गई। वो अगर चैलेंज करना चाहते हैं शौक से करें, हम उनकी तसल्ली करवा देंगे। अपोजिशन ने इसको मुकम्मल धांधली ज़्यादा करार दिया और ये कहा है कि सियासी जो बहरान है पंजाब के अंदर वो मजीद गहरा होगा, लिहाजा पंजाब के अंदर जो गवर्नर राज है, मुझे बताइए, गवर्नर राज का ऑप्शन हरगिज़ नहीं है, उसका जवाब भी नहीं है और उसका ऑप्शन बनता ही नहीं है। कहने को तो कुछ भी कह दें, आज उनके कद में इजाफा होता कि वो इस जमहूरी अमल को तस्लीम करते हुए अपनी शिकस्त को तस्लीम करते, उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये उनकी अपनी सवाबदीद है, ये उनका अपना चुनाव है, लेकिन वाज़े इलेक्शन हुआ है। देखिए, एक होता है वॉइस वोट, एक होता है कि आप अपनी नशिस्तों पे खड़े हो जाए, शो ऑफ हैंड, और गिनती कर दी जाए। एक होता है जिसको कहते हैं, जो आईनी तरीका है, डिवीजन। डिवीजन में आप एक एक मेंबर पर नजर रख सकते हैं। ऑपोजिशन को अगर चाहिए था तो ऑपोजिशन को किसी ने नहीं रोका था। जब हमारे मेंबर्स आईएस की लॉबी में दाखिल हो रहे थे, वो अपना नुमाइंदा खड़ा कर सकते थे और एक एक मेंबर को खुद देख सकते थे और एक एक टिक की तसल्ली कर सकते थे। जैसे कि नेशनल असेंबली में डिवीजन हुई थी, ऐसा हुआ था, हमारे लोग उनकी तरफ खड़े थे, उनके लोग हमारी तरफ खड़े थे, तो कोई अभाव नहीं रहा था। आज भी कोई अभाव नहीं रहा। ये अपने लोगों को तिफल तसल्लियां दे रहे हैं और अपनी खिफ़त को मिटाने के लिए इस किस्म के जुमले कह रहे हैं। शाह जी, ये बता दीजिएगा कि इमरान खान जो है, उन्होंने ऐलान किया था, जिसके बाद ये एडवेंचर शुरू हुआ, उन्होंने ऐलान किया था कि असम्बलियाँ तहलील की थी, जिसके बाद ये सारे मामला खराब हुए। अब कोई पर्टिकुलर डेट है कि, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मरहला था जो अबूर कर लिया है अब हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने, तो अब क्या रुकावट है, कितनी देर लगेगी, कोई एग्जैक्ट डेट है? देखिए, पहली बात तो ये है कि
हुकूमत ने, पीडीएम की हुकूमत ने गवर्नर के ऑफिस को हमारी नज़र में नाजायज़ तौर पर इस्तेमाल किया और उन्होंने उनसे एक ऐसा ऑर्डर करवाया जिस ऑर्डर को लाहौर हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया, स्टे ऑर्डर दे दिया ना। और अभी मसला अदालत में है, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकता, करनी भी नहीं चाहिए, सब जुडिस मैटर है। लेकिन उनका जो मौक़िफ़ था वो मनोअन अदालत ने तस्लीम नहीं किया। उन्होंने मौका दिया दोनों फ़रीक़ैन को सुनने का और सुनकर अपना वो फैसला सादर फरमाएंगे। लेकिन जो गवर्नर का मुद्दा था कि वज़ीर आला पंजाब अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, उसकी तो आज नफ़ी हो गई, उसकी तो नफ़ी हो गई। तो उस ख़त की जो हमारी नज़र में कानूनी हैसियत भी नहीं रखता, आज उस ख़त की तो अमली तौर पर मुंतखब नुमाइंदगान ने उसको रद्द कर दिया, उसकी नफ़ी कर दी। तो अब तो कोई, मैं समझता हूँ इसमें तहलील की कोई डेट पर्टिकुलर। देखिए, पार्टी का एक इमरान खान साहब का एक विजन है और उस विजन के तहत वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि हमें अपने मुंतखब मेंबरान का एहसास नहीं है, हमें अंदाज़ा नहीं है कि लोग कितने जतन से, कितनी मेहनत से मुंतखब होकर आते हैं। लेकिन इस वक्त हम सियासत को नहीं, हम रियासत को देख रहे हैं। रियासत की ज़रूरत ये है कि आवाम का एक फ्रेश मैंडेट मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिलता तो जिस भंवर में आज हम फंसे हुए हैं, जिस दलदल में कौम धंसी हुई है, हम इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। उसका वाहिद कानूनी, आईनी, जमहूरी रास्ता जो है वो है नए इंतखाबात। और उस ऑप्शन को इमरान खान प्रपोज कर रहे हैं। क्या इमरान खान कोई आइन से हट के बात कर रहे हैं? क्या इमरान खान कोई गैर कानूनी तकाजा कर रहे हैं? इमरान खान वो तकाजा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई लोगों पे भरोसा कर लो। दो बयानियाँ हैं, एक बयानिया हमारा है, तहरीक इंसाफ का है, और एक बयानिया पीडीएम का है। हम वो भी अपना मौक़िफ़ आवाम के सामने रखते हैं, हम भी अपना मौक़िफ़ आवाम के सामने रख देते हैं। और जिस मौक़िफ़ को आवाम तस्लीम करेगी, जिस बयानिए को आवाम तस्लीम करेगी, आपने देखा कि शामीम कुरैशी मीडिया के नुमाइंदों से आकर बातचीत कर रहे हैं। शामीम कुरैशी ने बातचीत करते हुए आज के हवाले से अपने तासुरात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि नून लीग वालों ने एक माह से शोर मचा रखा था और उन्होंने कहा कि नाकाम हुकूमत से छुटकारा हासिल करने के लिए मुस्तकबिल की सफ़बंदी करनी है। वफाकी हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इमरान खान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शामीम कुरैशी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब 186 अरकान के एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। अब हमें अवाम में जाना है, वो खुद फैसला करेंगे।